हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज बेसिकली करना क्या है अपने को। आज बेसिकली आई विल वॉक यू थ्रू दिस एंटायर जर्नी ऑफ हदूप। हदूप से हदूप वन से आया हदूप टू, टू से गया हदूप थ्री, और इन सब में क्या क्या डिफरेंसेस है और क्यों वन से टू की जरूरत पड़ी, टू से थ्री क्यों आया, क्या चेंजेस लेके आया। ये सब हम चंक बाय चंक धीरे 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 देखेंगे, ताकि जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाए तो इट विल बी कि ठीक है भाई, हमको पता है why Hadoop 1 came into picture, why 2, why 3, how are the architectures. Yes, it's interesting today, how it all evolved. Yeah, you can call it evolution also. So in hardware we saw generation of computers, right? In networking we saw how we walked the path of hub to bridge to switch to router, and then you went to gateway and etc etc. सो इस तरह से आज हम डिस्कस करने वाले हैं हडूप 1 and 2 को। एंड दिस सेशन वुड बी लाइक अ लेंदी सेशन एक्चुअली, so I don't want to make it very lengthy and spoil your weekends, and that too weekend afternoons, so that you should not be able to make any plans. ये नहीं करना है, and we will keep it short. So what I decided is, let's have two short sessions. Prerequisite session was really helpful. Thank you, Sahil. I'm happy. I'm happy it was helpful for you. Yeah. So where was I? Yeah. My plan was to keep the session short. It should not be very lengthy. And at the same time, we will divide it into two parts. Like मेरा usual style ये है कि before starting a session, I really like to give an overview of what's going to be happening in near future. What are we going to exactly do in these coming 1 to 2 hours? So you know कि आप रुके हो अगर session में और आप सुन रहे हो मुझे, तो आप क्यों सुन रहे हो? What exactly is going on here? Okay. So as I was telling you, ki we will be doing and digging into a lot of architectures and differences basically, and then we will move on to deployment. So I what I have a plan, what I have planned is कि आज Hadoop 1 का deployment हम देखते हैं quickly. उसके बाद हम, if time permits, we will even jump on to Hadoop 2 deployment. And then tomorrow, the entire session I want to keep it dedicated for the difference between 2 3 and Hadoop 3 ka deployment. ठीक है? That's how I have planned. Sounds good to all? Is my voice low? I guess Zaman is saying the voice is low. It's clear, right? Yes. So if the voice is clear, guys, अगर maximum सबको clear है, आपको नहीं आ रही है, तो please do check the volume settings. Do check your network. Sit in a place where we have good network. You want to skip version 1. You want to skip Hadoop 1. Why do you want to skip Hadoop 1? You know everything about it? Like, all good? तो जिनको आता है, वो लोग क्या करो, सुन लो और अपना एक रिब्रश करा लो कॉन्सेप्ट। और जिनको नहीं आता है वो लोग सुन लो अच्छे से। ठीक है, चलो। सो दैट वाज माय प्लान फॉर द डे, एंड वी विल डिवाइड दिस एंटायर सेशन इनटू टू चंक्स so that I have all your attention. Okay, Vinay. I am not going to skip anything. Don't worry, don't worry. I love these discussions. I like to discuss. I like to, talk about these concepts. And once the understanding is clear with a lot of examples and a lot of stories, फिर क्या होता है कि हमको फटक से वो एक वर्ड देखते ही याद आ जाता है। Okay. So let's come to the architecture of HDFS first. सबसे पहले HDFS का आर्किटेक्चर हम देखते हैं, ठीक है? So please can someone tell me what is the architecture of HDFS? आप बताओगे मुझे? MS बोलते हैं। इट्स मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, है ना? मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। अभी इससे एक फटक से आपको एक थोड़ा सा वॉक थ्रू में देती हूँ कि देखो, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की जब हम बात करते हैं, या और मास्टर वर्कर, yes, you're absolutely right. I love that word worker, and I do not like the word slaves. I absolutely do not like it actually. तो जब हम ये बात करते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की, तो देखो, आई वुड लाइक टू शेयर वन स्क्रीन, होल्ड ऑन। हाँ, ये दिख रहा है सबको?
वन नोट मेरा टिंग 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 टिट 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 आई पिक अ कलर ब्लैक इज गुड। ठीक है। हाँ, तो ये है आपका मास्टर, ये है स्लेव्स। आप बोलोगे मैम वी नो दिस, दिस इज तो हमको पता है ना? लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आई वुड लाइक टू डिस्कस, तो इसलिए पहले हम ये देख लेते हैं। अभी आप मुझे बताओ, सिंस आपको काफी अभी पता चल गया होगा इसके बारे में, तो आप मुझे बताओ कि हडूप वन में प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज होता है? ओके, मैप रिड्यूस। और हडूप वन में रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए क्या यूज होता है? हडूप वन में प्रोसेसिंग के लिए और रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, दोनों के लिए आपका मैप रिड्यूस ही यूज होता है। ठीक है। हडूप वन में प्रोसेसिंग एंड रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों भी आपका मैप रिड्यूस ही यूज होता है। अभी आप जब हम बात करते हैं मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर की, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक आपके पास मास्टर है, एक आपके पास स्लेव है या वर्कर नोड है। ठीक है। तो यहाँ पे दीज आर योर डेटा नोड्स, दिस इज योर मास्टर एन। अभी मुझे बताओ, अगर आपके घर पे किसी दिन आपकी जो हेल्प है, आपकी जो मेड है, उसको लेनी है छुट्टी, शी वांट्स टू गो फॉर अ हॉलिडे, तो वो क्या करती है? इज इट योर ड्यूटी टू कॉल हर अप एवरी डे एंड आस्क हर तुम आने वाले हो, तुम आने वाले हो, तुम आने वाले हो? या द डे शी डिसाइड्स टू टेक एन ऑफ, शी शुड बी एबल टू कॉल यू एंड टेल यू कि हाँ आज मैं नहीं आऊंगी? विच वे इज feasible, विच वे इट वर्क्स? Yes, she will inform, है ना? She will inform. So the same thing happens here. आपका जो master है, that master will not go to each data node and ask, how are you? Are you alive? Are you alive? Are you alive? Instead, जो हमारे data nodes है, वो क्या send करते हैं? To tell the master that they are working. What do they send? Heartbeats. Very good. They send heartbeats to let your name node know that they are working. They are alive. चल रहे हैं भाई हम, we are all good. अभी मुझे बताओ, मैप रिड्यूस जब हम बात करते हैं मैप रिड्यूस की, तो मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर के बारे में आपको कितना पता है? हाउ कॉन्फिडेंट आर यू अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ मैप रिड्यूस, कि मैप रिड्यूस किस तरह से काम करते हैं? ठीक है, सो विनय इज सेइंग नथिंग, समवन इज सेइंग मैपर प्लस रिड्यूसर, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है। तो मैप रिड्यूस बेसिकली क्या है, इसका जो फ्लो है ये आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। ठीक है, धीरे धीरे वी विल मूव टुवर्ड्स इट, डोंट वरी। वेयर इज इरेजर हियर? ओके, कम बैक हियर, आई पिक अ पेन, डूइंग गुड। सो व्हेन यू टॉक अबाउट मैप रिड्यूस, सबसे पहले याद रखो कि आपका जो इनपुट डेटा है, जो इनपुट डेटा है वो स्टोर्ड होता है आपके एचडीएफएस पे। ठीक है, डेटा कहाँ स्टोर्ड है? आपके एचडीएफएस पे। एचडीएफएस से क्या होगा, आपका जो डेटा है वो इनपुट स्प्लिट में कन्वर्ट होगा, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इनपुट स्प्लिट। सो ये जो डेटा है आपका, इट विल गेट कन्वर्टेड टू इनपुट स्प्लिट। अब जब ये इनपुट स्प्लिट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इनपुट फॉर्मेट। वी कॉल इट इनपुट फॉर्मेट। ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट फॉर्मेट? व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट फॉर्मेट? जस्ट अ मिनट गाइस, माय लैपटॉप इज, द टच इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। हाँ, तो ये जो इनपुट फाइल्स होते हैं आपके, मतलब आपके जो डेटा आपका एचडीएफएस से आ रहा है यहाँ पे, ये जो इनपुट फाइल्स होते हैं, वो आप कि ये इनपुट फाइल्स किस तरह से स्प्लिट होंगे और उनको किस तरह से पढ़ा जाएगा, ये डिसीजन लेता है आपका इनपुट फॉर्मेट। दैट इज द वन दैट डिसाइड्स और क्रिएट्स योर इनपुट स्प्लिट्स। तो इनपुट फॉर्मेट यूज करके किस तरह से स्प्लिट किया जाना चाहिए, ये decision लेगा आपका input format। Means your input format will basically decide how your data file should be split, and then the input splits are created। मतलब basically ये सब logically हो रहा है।
तो इनपुट स्प्लिट्स क्या है? दे आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर डेटा लॉजिकली, दे आर स्मॉल चंक्स ऑफ योर डेटा दैट इज रिप्रेजेंटेड लॉजिकली, एंड दिस डेटा इट विल बी प्रोसेस्ड बाय द मैपर नाउ। ठीक है, तो यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, मैप रिड्यूस में डायरेक्टली क्या होता है कि डेटा जाएगा मैपर को। नहीं, मैपर को जाने से पहले वो आपका इनपुट फॉर्मेट यूज होके लॉजिकल स्प्लिट्स बनते हैं। लॉजिकल स्प्लिट्स होने के बाद देयर इज समथिंग दैट स्टैंड्स बिटवीन योर इनपुट स्प्लिट्स एंड योर मैपर। वी कॉल इट रिकॉर्ड रीडर गाइस। व्हाट डू वी कॉल इट? रिकॉर्ड रीडर। अब ये रिकॉर्ड रीडर का क्या काम है कि ये जो आपके इनपुट स्प्लिट्स है, इनको वो की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करे, की वैल्यू पेयरिंग करे इनका, की वैल्यू पेयर में कन्वर्ट करता है। और पूरे फाइल्स जब तक रीडिंग स्टॉप नहीं होता, इट विल रीड ऑल द इनपुट स्प्लिट्स वन बाय वन, and when it has read all the files and converted it into key value pair, then that will be given as an input to your mapper। इसके बाद वो जाएगा आपके मैपर को। मैपर को जाने के बाद क्या होगा, मैपर जो है वो आपका जो इनपुट जो आया है उसको वो प्रोसेस करेगा और वो नए की वैल्यू पेयर्स जनरेट करेगा। और मैपर का जो आउटपुट है, कम ऑन टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ मैपर कॉल्ड एंड वेयर इट इज रिटन? टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। The output of the mapper is called intermediate output, guys. What is it called? Intermediate output. And it is written on your local file system. It is written on your local disk. और ये जो है वो एक temporary output है। Temporary output आपके मैपर से निकल के it will go to your combiner. कंबाइनर जो है ये आउटपुट के साइज को और छोटा करेगा, उसको हम रिड्यूसर भी कहते हैं, इन अ वे मिनी रिड्यूसर यू कैन से। वो आपके आउटपुट को छोटा करेगा, फिर वो जाएगा आपके शफलिंग एंड सॉर्टिंग स्टेज में। शफलिंग एंड सॉर्टिंग में क्या होता है कि आपका ये जो आउटपुट है वहां पे आपके जो लोकल डिस्क है वहां से वो रीड किया जाएगा, एंड देन इट विल गो टू योर रिड्यूसर। द रिड्यूसर विल वर्क ऑन इट, पूरा प्रोसेसिंग होगा और तब आपका आउटपुट आएगा। शफलिंग एंड सॉर्टिंग होगा, वो शफलिंग एंड सॉर्टिंग होगा, दैट विल गो टू योर रिड्यूसर। एंड रिड्यूसर का जो आउटपुट है, अब जैसे यहाँ पे इनपुट फॉर्मेट था, यहाँ पे आपका आउटपुट फॉर्मेट होता है, आउटपुट फॉर्मेट। और आउटपुट फॉर्मेट यूज होकर वो आउटपुट जो है वो वापस से आपके एचडीएफएस पे चला जाएगा। it will be given back to your HDFS, and from there the user will be able to read it. So this was the architecture of your MapReduce। ठीक है, MapReduce इस तरह से काम करता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि जो हडूप वन था हमारा, हडूप वन में जो आपका रिसोर्स मैनेजमेंट है और जो आपका डेटा प्रोसेसिंग है, ये सब का ध्यान कौन रख रहा था? आपका MapReduce वन रख रहा था। अब यहाँ पे शेड्यूलर आ जाता है पिक्चर में, शेड्यूलर आ जाता है पिक्चर में। तो शेड्यूलर जो यूज होता था हडूप वन में, आपको पता है कौन सा था? somebody told me कि पाठांतर झालंय, तो come on, give me the answers। FIFO, very good। first in first out, FIFO stands for first in first out। तो क्या होता है? why, what do you know about FIFO? can we just quickly discuss that? हमको आज तीनों भी शेड्यूलर्स देखने हैं, FIFO शेड्यूलर, कैपेसिटी शेड्यूलर एंड फेयर शेड्यूलर। कौन सा कहाँ होता है, कैसे यूज होता है? तो आई जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू नो अबाउट द FIFO शेड्यूलर? हाँ, बेसिकली व्हाट द नेम सजेस्ट कि फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि पहला जो भी जॉब आएगा, जो भाई पहले आके मांगेगा उसको मैं पहले प्रसाद दूं। वो लाइन में खड़े हो आप, लंगर चल रहा है, जो पहले आएगा उसको पहले मिलेगा, कोई भेदभाव नहीं। तो जैसे ही आपके पास आपका जो आ रहे हैं जॉब, उसको रिसोर्स एलोकेशन जो है, रिक्वेस्ट जो आ रहे हैं उनको रिसोर्स एलोकेशन जो है वो जैसे आएगा वैसे वो एलोकेट करता जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या थे? इसके एडवांटेजेस ये थे कि इसको कोई खास कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं थी, और जो एग्जीक्यूशन था वो जैसे सबमिट हो रहा है वैसे एग्जीक्यूट होता था। इट वाज वेरी सिंपल। लेकिन फिर अगर किसी चीज के एडवांटेजेस है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो एनी गेसेस व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेज?
Yes, latency can be one. Latency and time taking is same. ठीक है। अभी अगर आपको शेयर्ड क्लस्टर्स है आपके पास, या आपके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत बड़े हैं, तो क्या होता है कि जो दूसरे छोटे-छोटे जॉब्स हैं, उनका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो पहले आएगा, अगर वो बंदा बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट लेके आया है, तो सारे रिसोर्सेज़ तो वही यूज़ कर लेगा। ठीक है? सारे रिसोर्सेज़ उसको एलोकेट हो जाएँगे। फिर जब तक उसका काम खत्म नहीं होता है, दूसरा वाला यूज़ नहीं कर पाएगा। गेटिंग इट? और जो रिसोर्स एलोकेशन के बाद जो बैलेंस है, जो रिसोर्सेज बच गए, उनका कोई लेना देना नहीं था। एक आएगा, वो कंप्लीट होगा तो ही दूसरे दूसरे को एलोकेशन होगा। दिस वाज फीफो बेसिकली, है ना? तो हडूप वन में फीफो यूज हो रहा था, तो हमको थोड़ा सा प्रोसेसिंग भी स्लो हो रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो ड्रॉबैक, वैसे ये ज्यादा पॉपुलर हुआ भी नहीं मार्केट में, और इसके बाद जो ड्रॉबैक्स थे उनको ओवरकम करने के लिए हमने हडूप 2 को इंट्रोड्यूस कराया। Hadoop 2 का इंट्रोडक्शन आया। तो मूविंग टू Hadoop 2 now. Yeah, told you about MapReduce 1. We discussed the architecture. Then scheduler I told you कि FIFO यूज होता है। हाँ, अभी HDFS के आर्किटेक्चर में there was something called single point of failure. आपका जो नेम नोड था वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था। तो why was your name node single point of failure, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दिस इज योर नेम नोड, और यहाँ पे होता था आपका SNN। ओके, सो बेसिकली आई एम गोइंग टू डू अ टच बेस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक पॉइंटिंग हियर। ये आपका नेम नोड है, ठीक है। नेम नोड जो है, यहाँ पे आपको ये पता है कि FS इमेज और एडिट लॉग्स होते हैं। एडिट लॉग्स एंड FS इमेज। तो आफ्टर एवरी 1 आवर ये FS इमेज एडिट लॉग्स यहाँ पे SNN पे कॉपी होते हैं। दे आर कॉपीड आफ्टर एवरी 1 आवर। अभी प्रॉब्लम तब आता था तब ये 1 आवर कंप्लीट होने से पहले आपका जो एक्टिव नेम नोड है वो गया। अब मुझे बताओ कि जो 1 आवर हो जाने से, कंप्लीट होने से पहले, अब चेक पॉइंटिंग एक बार हो गया है, पूरा कॉपी हो गया है SNN पे, और अभी हाफ एन आवर ही हुआ है, सो नथिंग हैज बीन कॉपीड ऑन योर SNN, राइट? सो अब दिस गोज डाउन। सो आर वी एक्सपीरियंसिंग डेटा लॉस? Yes. And then also we will be experiencing a loss of the service also, क्योंकि इसको हम अप करके इसको हम स्टैंड बाय बोल के यूज नहीं कर सकते। So this became our single point of failure. Here your name node became your single point of failure. We wanted to overcome this. We did not want any type of loss. हमको किसी भी तरह का loss नहीं चाहिए था। तो एक तो वो था। दूसरा, हमको मल्टीपल फ्रेमवर्क्स भी यूज करने थे, जैसे स्पार्क का फ्रेमवर्क हो गया। तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रोविजन तो था ही नहीं। देयर वाज नो प्रोविजन फॉर दैट। So basically, if you say about Hadoop 1, it was like HDFS, उसके ऊपर आ गया आपका मैप रिड्यूस, है ना? और हमारे पास कुछ ऐसा ये था ही नहीं, प्रोविजन था ही नहीं जहाँ पे हम अदर फ्रेमवर्क्स को यूज कर सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया Hadoop 2। Hadoop 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई जिसका नाम था यान, यस। हमको उसको, द एंटायर सिस्टम हमको उसको बनाना था फॉल्ट टॉलरेंट, जैसे किसी ने एक वर्ड यूज किया अभी। यस, फॉल्ट टॉलरेंस इज द वर्ड। So what here exactly we wanted to do here? Yes, Kunal, MapReduce 2. Now I'm going to tell you what MapReduce 2 exactly means. ये हमारा MapReduce 1 है, MapReduce 1 है। ये बंदा सारे काम कर रहा था, एक ही इंसान था, रिसोर्स मैनेजमेंट भी यही कर रहा है और प्रोसेसिंग भी यही कर रहा है। ही वॉज डूइंग एवरीथिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहा है और प्रोसेसिंग भी कर रहा है। येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर इज योर यान, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। ओके, सो MapReduce 1 ये कर रहा है। हमने इसको क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया स्प्लिट। हमने इसको दो हिस्सों में कर दिया स्प्लिट। यहाँ पे हमने बोला भाई जो तुम्हारा रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है वो हमारे यान भैया को करने दो, और आपका जो प्रोसेसिंग का काम है उसको हम MapReduce के पास ही रखते हैं, और उसको हम नाम दे देते हैं MR2। आई बात समझ में? तो बेसिकली द स्प्लिट ऑफ योर
MapReduce, the split of your MapReduce into what did I say, Yarn and MR2 is basically your Hadoop 2. अभी इसके लिए हमको ये समझना भी बहुत जरूरी है कि what exactly Yarn is. So how many of you all want to go through the architecture of Yarn? Basically देखो अभी as I told you guys कि यहाँ पे आपका जो RM यानी Yarn है, Yarn will be taking care of your resource management and MapReduce will be taking care of your all the other types of jobs. Okay. Hadoop 1 में क्या था? MapReduce was taking care of resource management. It was taking care of data processing also. That is the major difference, guys. That is the major difference. तो अभी हम देखते हैं how your Yarn functions. Yarn का architecture अब हम देखते हैं. So far good? So far good. Difference समझ में आ रहा है? 1 and 2 क्या डिसएडवांटेजेस थे 1 के एंड क्यों हमको 2 की जरूरत पड़ी, है ना? सो इफ समवन आस्क्स यू गाइस डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन H1 and H2, Hadoop 1 and Hadoop 2, will you be able to tell them? Okay Tanveer, I'll go slow. Guys, now you need to buck up. आपकी बैच मई में स्टार्ट हुई है. अब याकूब आपको सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर समझ में आया? Why the name node was a single point of failure? Very good. आपकी बैच मई में स्टार्ट हुई है guys. If you ask me to go slower than what I am doing right now, like, then how are we going to work? This is just a brush up of things that you really know. I am trying to make sure that you get a good understanding of these concepts. They become concrete. There shouldn't be any confusion left in your mind. And if I still go slow, then I wonder when is this going to get over? Hadoop will get over, but the batch will keep running if I go even slower. Nobody can predict what someone will ask you, Vinay. Nobody can predict. H1 is not used anywhere. Yes, it was not very popular in the market. But if somebody really wants to check the authenticity of the resource, don't you think the person will ask you? Don't you think कि ये आपकी अगर फील्ड है, ये अगर आपकी फील्ड है कि आप Hadoop एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हो, so don't you think people who will walk into the industry with say 5 years or 6 years of experience, they should know what was the scenario like when long back when it all started? अगर आपकी फील्ड है और आप उस फील्ड में एक्सपर्टीज बता रहे हो, तो आपको नहीं लगता कि आपकी फील्ड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए? अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता था तो आपको लगता था कि हम लोग आपको Hadoop वी वुड हैव इवन इंट्रोड्यूस्ड यू टू इट. आपको बताते थे हम ओपन सोर्स क्यों होता है. नहीं, कौन यूज करता है प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन ग्रेड यूज होता है, लेकिन ओपन सोर्स की जरूरत आन पड़ी तो आपको नहीं लगता आपने इक्विप्ड होना चाहिए? एग्जैक्टली, यू शुड नो everything about your field. That's when you are called an expert. ऐसे नहीं हो जाना कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर इन नन. एक चीज का मास्टर बनो, भले ही आपको एक चीज बहुत अच्छे से आते हो बाकी कुछ ना आता हो. वो एक चीज बहुत अच्छे से आती हो तो पीपल विल ऑब्वियसली चूज यू ओवर अदर्स जिनको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है. गेटिंग इट? या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी वर, where were we? Yeah, we were discussing about, come on tell me, what was I discussing about? Was I discussing about Impala, Hive? Yarn architecture. Amazing. Good, good, good. I was discussing about Yarn. तो Yarn के master slave architecture ही है. Yarn में भी, Yarn में भी there is a master slave architecture. Okay. Yarn का master जो है वो कौन है? कौन बताएगा मुझे? Very good. It is your resource manager. And जो slaves है वो कौन है? The slaves, I didn't say slave, okay, I said slaves because there are two, NM and AM. NM and AM. Okay. Now, when you talk about Yarn architecture, please remember one thing. There is this very important concept that comes into picture, जिसको हम कहते हैं container. कि कंटेनर क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है यार्न आर्किटेक्चर के बारे में जब हम बात करते हैं. तो स्लोली स्लोली आई विल वॉक यू थ्रू दिस. सबसे पहले क्या होता है, एक मिनट, होल्ड ऑन, आई विल जस्ट डिलीट दिस. तो सबसे पहले क्या होता है, आपका जो क्लाइंट है, आई विल जस्ट टेक अनदर कलर टू शो द जॉब सबमिशन. वो कुछ जॉब सबमिट करता है, ठीक है. जॉब जब वो सबमिट करेगा तो
तो ये जॉब जाएगा आपके रिसोर्स मैनेजर को। किसको जाएगा? रिसोर्स मैनेजर को। रिसोर्स मैनेजर को जब ये जाता है तो वो क्या बोलेगा? सबसे पहले तो वो चेक करेगा कि आपके नोड्स का स्टेटस क्या है। आर दे ऑल अप एंड रनिंग? अब वो व्हेन दे ऑल आर अप एंड रनिंग, so just we'll draw 3 nodes here. Now in your nodes we have node manager. Okay, ये यहाँ पे बैठता है आपका node manager. We are going to see what node manager does. We are going to see what application master does. अभी यहाँ पे आता है आप resource manager is basically divided into two parts. एक होता है आपका scheduler, जो बेसिकली शेड्यूलर एज द नेम सजेस्ट, इसका काम क्या है? जॉब्स को शेड्यूल कराना, विच विल गो फर्स्ट एंड विच विल गो नेक्स्ट। इसके साथ आता है आपका एप्लीकेशन मैनेजर। एप्लीकेशन मैनेजर ऐसे समझो कि आपकी जो रिसोर्सेज है वो एक बड़े से गोडाउन में रखे हुए हैं, उनको मैनेज करने का काम करता है आपका एप्लीकेशन मैनेजर। अब इन बिटवीन देयर इज समथिंग कॉल्ड एप्लीकेशन मास्टर। एप्लीकेशन मास्टर, ये चीज जरूर याद रखो कि आपका जो एप्लीकेशन मास्टर है इसकी लाइफ बड़ी छोटी होती है ना? इसकी लाइफ उतनी ही होती है जितनी आपके कंटेनर की लाइफ है। एक जॉब के लिए एक कंटेनर लॉन्च होगा और जब तक वो कंटेनर जिंदा रहेगा आपका एप्लीकेशन मास्टर जिंदा रहेगा। वो आपने स्टोरी सुनी थी ना, शैतान की जान तोते में। तोता जब तक जिंदा है तब तक शैतान जिंदा है। सेम वे, सेम कॉन्सेप्ट। जैसे आपका ये जो कंटेनर है, यहाँ पे हमने एक नोड पे कंटेनर लॉन्च किया ना। कंटेनर क्या है? कंटेनर बेसिकली एक लॉजिकल एंटिटी है जिसको हमने कुछ रिसोर्सेज दे रखे हैं। हमने उसको रैम दिया है, हमने उसको सीपीयू दिया है, और आपके जो टास्क है वो उस कंटेनर के अंदर रन होते हैं। उस कंटेनर के अंदर आपके टास्क जो है वो रन होते हैं। सो जैसे ही आपका जॉब रिक्वेस्ट सबमिट हुई, रिसोर्स मैनेजर ने नोड स्टेटस चेक किया, वो एप्लीकेशन मास्टर लॉन्च करेगा। एप्लीकेशन मास्टर जो है आपके रिसोर्स मैनेजर से नेगोशिएट करेगा कि मुझे ये जॉब के लिए इतने रिसोर्सेस चाहिए, इतना रैम चाहिए, इतना सीपीयू चाहिए। रिसोर्स मैनेजर आपके एएम को बोलेगा इसको रिसोर्सेस दो और शेड्यूल कर दो। तो रिसोर्सेस दे के जॉब शेड्यूल होगा और यहाँ पे आपके कंटेनर लॉन्च हो जाएंगे। कंटेनर इज अ डिब्बा, डब्बे के अंदर डिब्बा। दिस इज योर नोड। नोड के अंदर आपका एक और छोटा सा डब्बा आ गया जिसको हम कहेंगे कंटेनर। डब्बे के अंदर डब्बा है। अभी कंटेनर जैसे मैंने आपको बोला एक लॉजिकल एंटिटी है, ठीक है? इट इज नथिंग फिजिकल, यू कैन नॉट सी इट। ऐसा डब्बा खोल के आपको कोई कंटेनर नहीं दिखने वाला है उसके अंदर। इट इज अ लॉजिकल एंटिटी बेसिकली। तो कंटेनर के अंदर आपका अभी जो छोटे छोटे टास्क है वो रन होने शुरू हुए। टास्क क्या है? तो आपका जो जॉब है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है जिनको हम टास्क कहते हैं। छोटे छोटे टास्क होते हैं। तो टास्क रन होना शुरू हुए। अभी आपके टास्क शुरू से लेके आखिर तक सक्सेसफुली रन हो रहे हैं, कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फेल हो रहे हैं, है ना? देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, आइदर दे देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज, आइदर दे गेट सक्सेसफुल और दे डू नॉट गेट सक्सेसफुल, दे गेट स्टक और दे फेल कंप्लीटली। ये तीनों पॉसिबिलिटीज का जो रिपोर्ट है कि भाई हो क्या रहा है। एक होता है ना वो अपना दोस्त होता है जो हर चीज आके हमारे मम्मी को बताता है, आपको पता है आंटी आज इसने क्या किया? दैट टाइप ऑफ दोस्त। ऑल ऑफ यू हैव सच काइंड ऑफ फ्रेंड्स। पूरे ग्रुप में एक तो होगा जो सारी चुगलियां जाके मम्मी को करेगा। ओ माय गॉड, यू आर रियली अनलकी योगित। यू शुड हैव वन सच फ्रेंड। अपने को पता चल जाता है कि अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ है। नहीं, बचाने वाला इज तो कम्प्लीटली डिफरेंट। बचाने वाला इज तो वन जो आपके साथ जेल में बैठा हुआ मिलेगा कुछ कांड कर दो तो। लेकिन दिस फ्रेंड इज द वन जो आपको बचाएगा ऐसी चीजों से। आस्तीन का सांप नहीं। दिस इज अ रियल वेल विशर। If you are smoking the first time in your life, there is no way your mother doesn't know or your father doesn't get to know about it. Someone is going to give the report. That is your node manager. वो जाके आपके resource manager को बताता है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। That is your node manager. अब जैसे ही आपका जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, एक हो गया, दो हो गया, तीनों टास्क कंप्लीट हो गए, मिलके एक जॉब हो गया, जॉब कंप्लीट हो गया, तो आपका जो कंटेनर है इसको टाटा बाय बाय कहा जाएगा। जैसे ही कंटेनर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया, आपके एप्लीकेशन मास्टर का भी एग्जिस्टेंस खत्म। नाउ दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ योर यान। आर यू क्लियर विथ इट? इंटरेस्टिंग? liking it? It's very easy if you are able to correlate all this with your day-to-day life. If you are able to correlate all this with your day-to-day life, it becomes very easy. Try and understand all the concepts using your what to say, day-to-day examples.
थियोरी तो आपको बड़े-बड़े पेजेस की मिल जाएगी. गो एंड गेट यूज्ड टू रीडिंग दिस Cloudera documents, get used to reading a lot of books, like you have this expert Hadoop and this and that. They will explain this one concept in say 25 pages to you. Now, if I come here and if I take a book and I start reading to you, I start reading everything to you, will it sound interesting to you? कुछ समझ में आने वाला है? वो तो आप भी कर सकते हो. Why do you need me? I am here to make the concepts easy for you so that tomorrow, when you are trying to answer in the interview, you should be able to articulate. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं आर्टिकुलेशन. जब आप बैठते हो ना इंटरव्यूअर के सामने गए, तो क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट्स तो सारे आपने पढ़े होते हैं, लेकिन उनको याद करना, उनका कोरिलेट करना और कोरिलेट करके सामने वाले को प्रेजेंट करना, this is a skill. This is a skill, and that is only possible when you have a picture, when you have an imaginative picture in your mind. You understand the flow. अब जब ये गंदा सा डायग्राम जो मैंने बनाया था यान आर्किटेक्चर का, जब भी आप देखोगे या अच्छा वाला भी देखोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड. अरे रिसोर्स मैनेजर, ओके, इमीडिएटली यू विल गेट टू नो शेड्यूलर एंड एप्लीकेशन मैनेजर, फिर एप्लीकेशन मास्टर, फिर ये यहाँ पे गया कंटेनर. आस्तीन का सांप याद आएगा आपको कि नोड मैनेजर क्या करता है, कंटेनर क्या होता है, लॉजिकल एंटिटी होता है. डन डन डन. अभी हियर एंड देन एंड देयर आपके दिमाग में आर्किटेक्चर फिक्स हो गया. कोई आपको पूछेगा कंटेनर क्या होता है, आपको पता है क्या होता है. यू शुड बी एबल टू टेल इट कि इट्स ओनली अ लॉजिकल एंटिटी बेसिकली, है ना. और उसका एग्जिस्टेंस कब तक होता है. तो ये सारी चीजें जब आपके दिमाग में क्लियर होती है, तो आपको जब रियल टाइम इश्यूज भी आते हैं ना, तो तब क्या होता है कि सिंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, you will be able to correlate, and when you are able to correlate, it will be very easy to troubleshoot. Yeah, Moin, डब्बे के अंदर डब्बा. That's how we remembered it, and that's what works for me basically. That is something that works for me. Yeah. तो मैप रिड्यूस, सॉरी, वेयर वाज आई. यान. यान के आने से क्या हो गया, यान के आने से बहुत इजी हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग इजी हो गया, एंड नाउ वी वर एबल टू सपोर्ट मल्टीपल फ्रेमवर्क्स. A very 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 popular framework that we were able to support because of Yarn was Spark on Yarn. We were able to support something called Spark on Yarn. Okay, so really would like to give you a little bit of overview of what Spark on Yarn is. ठीक है? How much do you know about Spark, guys? कि Spark क्या है? What does Spark work on? Spark का भी similar है. जैसे आप बोलोगे कि मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर पे ही आपका स्पार्क काम करता है. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन योर मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर. ठीक है. अभी इसमें जो आपका मास्टर होता है, द मास्टर इज योर ड्राइवर. एंड मीनवाइल गाइस, आई रियली वांट यू टू डू अ स्मॉल एक्सरसाइज एवरी डे. छोटा सा एक आपको एक्सरसाइज दूंगी मैं करने के लिए, टू जस्ट इम्प्रूव दी स्पोकन स्किल्स. ओके, spoken English skills. If you go to your YouTube, there is this lady. Her name is Barbara Milne. Okay, and she is the one who teaches phonics to kids. She has a very nice little song. Like if time permits, at the end of a session, I would even play that song for you just to make the session a little interesting, or maybe in the break time. It is a phonics song. I'm sure अभी phonics इंडिया में तकरीबन हर स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गए हैं. So what happens is, like in our times, हमने कैसे पढ़ा था? A is a, B is b, b, C is k. इस तरह से हमने पढ़ा था. But that is now not how exactly it is. A is a, B is b. And when you learn those phonic sounds, for people who are from vernacular medium, it will be very easy for you. Getting it? So pronunciations will become refined, and you will be able to speak good English. So what we'll do is, when I take a break, I will just like try to play that song for you, or at the end I'll share the link. Keep listening to it every day. क्योंकि टेक्निकल के साथ साइड बाय साइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन भी इंप्रूव होती रहे. एंड I'll keep giving you these tips because Barbara Milne, I'll share the link with you. So it's very important कि आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश भी इंप्रूव होती रहे. ये सफवान. एंड उसके साथ क्या होगा कि आपको जो मैं बता रही हूँ ये आपको प्रेजेंट करने में भी हेल्प होगी, एंड इजी जाएगा. ओके,
So, like for example, I met a boy that day. He was saying Rome, ROM is Rome for him. But no, ROME is Rome, guys. ROM is ROM. So these are the basic mistakes that most of us make, and it's absolutely okay. It's absolutely okay, because not everybody here is coming from an English medium background. You know, you're coming from vernacular mediums. But at the end, हम इतनी बड़ी बड़ी technology सीख रहे हैं, तो English is just a language. Getting it? सीख जाओगे. Don't worry about it. But थोड़ा सा practice, थोड़ा सा मेहनत, and it should be fine. हाँ, तो master is your driver and slave is your executor. Now master को आप बोल सकते हो कि this is the one who gives the instructions. अभी एक restaurant imagine करो, ठीक है? Restaurant imagine करो. तो restaurant में एक master chef होता है. वो बोलता है ये करो, वो करो, चीनी इतनी डालो, इसको इस तरह से रोस्ट करो, इसके ऊपर ऐसे गार्निशिंग करो. This is the person who is only giving you all the instructions. मास्टर आपका जो ये ड्राइवर है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू योर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट फॉर स्पॉनिंग दिस स्पार्क कॉन्टेक्स्ट बेसिकली. और ये जो आपका स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, दिस इज अ गेट. आपके पूरे जो क्या कहते हैं हम, जितने भी आपके स्पार्क के एप्लीकेशंस है, उन सब का जो गेटवे है, दैट इज योर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट. ठीक है? सो जैसे हमने देखा कि ड्राइवर के बारे में हमने अभी पढ़ा. अभी आई टेल यू मोर अबाउट एग्जीक्यूटर्स. कि एग्जीक्यूटर्स क्या होते हैं. एग्जीक्यूटर्स वो छोटे छोटे शेफ है जो एक्चुअली किचन में काम करते हैं. They are actually the workhorses of your architecture. They are the ones who are doing the actual work. They are the ones who are doing the actual work. Getting it? So that's why we say कि Spark works on master slave architecture. यहाँ तक clear है? This weather is really bad. It is like untimely rains. कहीं पे भी कुछ भी चल रहा है. Okay. So client, your client will submit a job. आपका जो client होता है वो job submit करेगा आपके रिसोर्स मैनेजर को. रिसोर्स मैनेजर अभी हम देख रहे हैं स्पार्क ऑन यार्न. ओके, स्पार्क ऑन यार्न देख रहे हैं हम. होल्ड ऑन, स्पार्क ऑन यार्न देख रहे हैं हम. तो आपका जो क्लाइंट है दैट विल सबमिट द जॉब टू योर रिसोर्स मैनेजर. रिसोर्स मैनेजर को जब वो जॉब सबमिट होता है तो क्या होता है? एनी गेसेस? आपका ड्राइवर प्रोग्राम आएगा. ड्राइवर प्रोग्राम क्या करेगा, मतलब ड्राइवर एग्जैक्टली कैसे काम करता है वो आपको पहले बता दूं. ये जो है ड्राइवर, ये आपका एक स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को जन्म देगा. स्पार्क कॉन्टेक्स्ट जो है वो आपके जो वर्कर नोड्स होते हैं, जो आपके वर्कर नोड्स है, इनके अंदर पहले देखो बेसिकली ड्राइवर टू मोड्स में होता है. स्पार्क फंक्शंस इन टू मोड्स. एक तो है आपका क्लस्टर मोड, दूसरा है आपका क्लाइंट मोड. क्लाइंट मोड के बारे में हमको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हमको समझना है क्लस्टर मोड. क्लस्टर मोड इटसेल्फ शुड टेल यू कि आपका जो ड्राइवर है वो कहीं तो यहाँ आके बैठेगा. आई जस्ट चेंज द कलर एंड मेक द ड्राइवर टू येलो. आपका ड्राइवर कहीं पे यहाँ पे बैठा होगा. वन ऑफ द वर्कर नोड्स पे जाके आपका ड्राइवर बैठेगा और वहां से वो क्या करेगा, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को जन्म देगा. स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को वो जन्म देगा. एंड इन योर वर्कर नोड्स यू विल बी हैविंग योर executors. Executors are your actual workhorses, as I told you. इनके अंदर these executors, in them there are these little tasks which are running, and there is some space that is left for cache. Cache. I'm so wrong at pronouncing this because everyone keeps calling it cache. It is not cache. It is cache. Okay. So this is your worker node. इसके अंदर launch हुआ आपका executor. Executor के अंदर आ गए आपके छोटे छोटे tasks. This is clear to you. और ये tasks जो है ये इनका पूरा ध्यान जो है वो कौन रखेगा? आपका नोड मैनेजर रखता है. और पूरी रिपोर्ट जो है वो देता है आपके क्लस्टर मैनेजर को. आपके क्लस्टर मैनेजर को वो रिपोर्ट देता है. और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो ये पूरी रिपोर्ट जाएगी आपके रिसोर्स मैनेजर के पास और रिसोर्स मैनेजर से जाएगी आपके ड्राइवर के पास और ड्राइवर अपडेटेड रहेगा आपके पूरे टास्क के बारे में. सिमिलर, मतलब बेसिकली आपको ये बहुत सिमिलर लगेगा यान से क्योंकि इट इज स्पार्क ऑन यान. इट इज बेसिकली स्पार्क ऑन यान. क्लाइंट मोड में क्या रहता है कि आपका जो क्लाइंट मशीन है वहीं पे आपका ड्राइवर होता है.
अब इसका ड्रॉबैक ये हो जाता है गाइस कि अगर आपका क्लाइंट मशीन डाउन हो जाता है ना, तो पूरा ड्राइवर ही गया, और ड्राइवर ही गया मतलब मास्टर ही गया। तो एवरीथिंग विल स्टार्ट फेलिंग इवेंचुअली। तो बेसिकली स्पार्क के बारे में इन डिटेल जब आप आर्किटेक्चर करोगे, तो आई वुड लाइक यू टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ आरडीडीज, कि एग्जैक्टली आरडीडीज क्या होते हैं। बिकॉज योर ड्राइवर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि क्रिएटिंग योर आरडीडीज एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑफ योर what to say DAGs। DAG क्या होते हैं? डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ्स। डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ्स जो आपके होते हैं, उसको क्रिएट करना, लॉन्च करना, ये भी आपके ड्राइवर का काम है। नो व्हाट दीज आर, ये आप डिटेल में जब स्पार्क का आर्किटेक्चर करोगे, तब आप इसको थोड़ा सा गो थ्रू करना। आई डू नॉट वांट टू लाइक कंफ्यूज यू ऑल विथ ऑल द आर्किटेक्चर्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मैं आपको जस्ट एक ओवरव्यू दे रही हूँ। यस, आई अंडरस्टैंड दिस आर्किटेक्चरल पार्ट, इट गेट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग कि कहाँ से क्या हो रहा है, बट रीडिंग शुड हेल्प यू। आपको बहुत सारा रीडिंग करना पड़ेगा इस चीज के लिए। यू विल हैव टू लाइक रीड अ लॉट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। जैसे क्या डीएजी होता है, आरडीडीज क्या होते हैं, कौन उसको लॉन्च करता है, कैसे चलता है। आई जस्ट रिपीट दिस स्पार्क आर्किटेक्चर वंस अगेन, सो दैट थोड़ा आपके दिमाग में एक कॉन्क्रीट पिक्चर तैयार हो जाए। ठीक है? डोंट वरी, ब्रीथ, रिलैक्स। Nobody is expecting you to understand everything in day one. Why do you think we provide recordings? आपको क्या लगता है रिकॉर्डिंग क्यों दी जाती है? Because we very well understand you all are humans. We very well understand that each one of us comes here with a different understanding level, with a different grasping speed, है ना? तो basically what I was trying to tell you कि your Spark works on your master slave architecture. Driver is the master. Now driver का काम क्या है? कोऑर्डिनेशन है। आपकी जितने भी वर्कर्स है, वो वर्कर नोड्स के अंदर आपके एग्जीक्यूटर्स है। तो एग्जीक्यूटर्स के साथ कोऑर्डिनेशन करने का काम जो है आपके ड्राइवर का है। मास्टर शेफ है वो आपके रेस्टोरेंट का, तो देखेगा तेरा काम हुआ क्या, तुम्हारा हुआ क्या नहीं, आप क्या कर रहे हो, आपका क्या चल रहा है, वहां पे फूड सर्व किया कि नहीं। इट्स लाइक अ मैनेजर। हर रेस्टोरेंट में होता है ना वो एक मैनेजर जो कीप्स अ ट्रैक ऑफ ऑल दी पीपल हु आर हेल्पिंग देयर, पीपल हु आर सर्विंग फूड एंड एवरीथिंग, एंड द कुक्स हु आर कुकिंग। अभी ड्राइवर के दो इंपॉर्टेंट रोल्स आप याद रखना, कि एक तो आरडीडीज क्रिएट करेगा, और जो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एक्शंस है उसके ऊपर वो काम करेगा। मतलब बेसिकली देखो, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पार्क में, तो इट इज ओनली अ ट्रांसफॉर्मेशन, कोई एक्शन वहां पे नहीं होगा। इट विल नॉट मेक एनी चेंजेस इन योर आरडीडीज। लेकिन जैसे ही एक्शन कॉल करते हैं हम, तब आपके आरडीडी में चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना। ठीक है? आरडीडी, एज आई टोल्ड यू, इट इज अ रेजिलियंट, क्या है यार, व्हाट डू यू कॉल, रेजिलियंट, I don't know. I just forgot the full form, I guess. I'm recalling it. Hold on. ये फुल फॉर्म्स में बड़ा कंफ्यूजन होता है मेरे को। आई नो अबाउट डीएजी इज डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ। दिस आई गेस आरडीडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, होल्ड ऑन, रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट। राइट, डेटा सेट। इट इज अ रेजिलिएंट डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सेट, एक डेटा सेट है। उसके ऊपर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन, द वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स यू कि देयर आर सर्टेन चेंजेस। ट्रांसफॉर्मेशन जब होते हैं तो आपकी कोई एक्शन कॉल नहीं होगी, लेकिन व्हेन यू कॉल एन एक्शन, इट विल मेक द चेंज टू योर आरडीडी। ठीक है, यहां तक समझा? अब आगे जब आप आते हो कि गेटिंग द करंट स्टेट ऑफ स्पार्क एप्लीकेशन, बेसिकली उसका क्या स्टेट है, इज इट कैंसिलिंग जॉब्स, इज इट रनिंग, इज द जॉब स्टक, ये भी आपके ड्राइवर का काम होता है। तो ड्राइवर और कॉन्टेक्स्ट, आपका जो स्पार्क कॉन्टेक्स्ट है, इन दोनों को जब आप मिला देते हो, आपके ड्राइवर को और स्पार्क कॉन्टेक्स्ट को जब आप मिला देते हो, तो आपका पूरा स्पार्क का एप्लीकेशन रेडी हो जाता है। तो योर ड्राइवर प्लस योर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट टुगेदर is your Spark application. And now this is running on your Yarn framework, guys. So when we submit a Spark job, it is accepted by your RM. आपका RM जो है वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो पहला कंटेनर इनिशिएट करेगा। इट विल टेल योर एप्लीकेशन मास्टर टू इनिशिएट द फर्स्ट कंटेनर। गेटिंग इट? उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपका कंटेनर हो गया लॉन्च, तो वो क्या करेगा, स्पार्क कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा। और फिर स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का काम है सारे नेगोशिएट करना, रिसोर्सेज नेगोशिएट करना, आरडीडी क्रिएट करना, डीएजी क्रिएट करना, अपडेट्स लेना।
ड्राइवर बोलेगा भाई मैंने ऑर्डर ले लिया है, कस्टमर से ऑर्डर ले लिया है, क्या चाहिए, ओके यू वांट वन चिकन तंदूरी, वन बिरयानी, दिस दैट, एवरीथिंग ऑर्डर हैज बीन टेकन। देन इट विल गो एंड टेल एप्लीकेशन मास्टर, भाई जाओ कुक को बोलो कि कंटेनर लॉन्च करे, यानी एक कढ़ाई रखे बनाने के लिए, या वॉट एवर यू वांट टू यूज, कीप इट, स्टार्ट मेकिंग इट। इसके बाद आपका खाना बना, आपके खाने की रेसिपी, आपके खाने की रेसिपी सही है क्या नहीं, आपका प्लानिंग, उसका गार्निशिंग और उसका सर्व करना, ये सारा काम आपके स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का है। उसी तरह से रिसोर्स नेगोशिएशन, क्रिएटिंग ऑफ आरडीडीज एंड डीएजीज एंड गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम द एग्जीक्यूटर, ये पूरा काम आपके स्पार्क कॉन्टेक्स्ट का है। Am I making sense to you all? Are you understanding? Okay, thank you. chill, chill, relax. I'm going slow. अभी आपको ड्राइवर समझ में आया, वो मैनेजर जो ऑर्डर्स लेता है, आपको स्पार्क कॉन्टेक्स्ट समझ में आया जो एक्चुअल मैनेजमेंट करता है ना? तो थोड़ा सा इस तरह से इसको समझो। फिर क्या होता है कि पूरा एप्लीकेशन का ये पूरा प्रोसेस होगा कि जैसे कंटेनर लॉन्च होगा, वहां पे छोटे-छोटे टास्क रन होंगे, फ्यू टास्क टुगेदर विल बी अ जॉब। हर टास्क जब सक्सेसफुली रन होता है तो इसका मतलब आपका जॉब सक्सेसफुली रन हो गया। एंड जॉब सक्सेसफुली रन होने के बाद इसका रिपोर्ट जाता है आपके ड्राइवर को। ड्राइवर बोलता है ओके डन, जॉब कंप्लीटेड। जो आपका क्लाइंट है वो सबमिट करेगा जॉब, और कॉन्टेक्स्ट उसको आरडीडीज डीएजी में कन्वर्ट करके उसका पूरा एग्जीक्यूशन करके आपके ड्राइवर को रिपोर्ट देगा। दैट इज ऑल अबाउट स्पार्क। And Spark on Yarn आने की वजह से RM, that is your resource manager, and your application master came into picture. And since it is a cluster mode, as I told you, कि आपका जो ड्राइवर है वो किसी एक वर्कर नोड पे बैठा हुआ होगा। Are you clear now? Are you clear with this basic architectural framework of Spark? Have you started understanding things better now? थोड़ा सा क्लैरिटी आ रहा है कि यान क्या है एंड स्पार्क क्या है? एक कॉन्सेप्ट आ जाता है यान में बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, दैट इज यान क्यूज। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द इंटरव्यूज कम ऑन यान क्यूज, कि यान क्यू एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट इज यान क्यू एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा आपको वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Are we diverting from the topic, Sohail? Do you really think ki when I am trying to explain the architectures, you should be putting up this question? Like, don't we follow this pattern? Ki end of the session, you can put up these questions. So you want me to walk you through host allocations and role assignments? पिछला वाला session था क्या हमारा? CM की बात कर रहे हो आप? तो आपको हमने deploy like a boss बताया था. You need to go to deploy like a boss and go through it once in detail. Okay, so what will happen is you will be able to understand it, and if you still do not understand, please do ask a lot of questions in your labs and watch the recording again. Okay, and still if there is a problem, tell CloudEdge to connect you to me, no problem dear. ठीक है, तो आते हैं हम यान क्यूज पे। तो अभी आपकी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं फिनेंस के, डिपार्टमेंट होते हैं इकोनॉमिक्स का, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है इनको अलग अलग रिसोर्सेज एलोकेटेड होते हैं। ठीक है, दे आर एलोकेटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके मेन डिपार्टमेंट या मेन डोमेन के अंदर आपके छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हमारे पास अगर 100% रिसोर्सेज है तो आपको हम 20% देते हैं, आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है आपको हम 30% देते हैं। आप काम कर लेना से 25% पे, कितना गया 30 40 50 60 75, आप काम कर लेना बचे हुए 25% पे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सबको कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, सबको कुछ ना कुछ मिलना जरूरी है, इसलिए हमने यान क्यूज का कॉन्सेप्ट लेके आए कि सबको हमने एक परसेंटेज दे दिया हमारे रिसोर्सेस का। अब आपको जैसे जॉब सबमिट करना है, जितने जॉब सबमिट करना है, जो करना है वो करो, बट विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ दिस, विद इन दिस 20% 25% 30%। तो
अगर आपकी क्यू फुल हो जाती है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर जॉब खत्म हो, आपके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हो, तो ही आप काम कर सकोगे। तो तो जो भी आपका चल रहा है, वो आपके ये 20% में ही चल रहा है। अगर यहाँ पे कोई जॉब अटका पड़ा है, तो ये बाकी के लोग थोड़ा-सा वेट करेंगे, ये फ्री होगा तो यहाँ पे जगह बनेगी अगले वाले जॉब के लिए। तो जैसे हमारी क्यू होती है, लाइक यू माइट हैव सीन व्हेन यू स्टैंड इन अ क्यू टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, और आज तो सब कुछ डिजिटल हो गया है, लेकिन अर्लियर टाइम्स में होता था ये कि आप रुके हो कहीं पे, या यू माइट हैव सीन एट केएफसी एंड मैकडीज, वहाँ पे आप रुके हो आपके ऑर्डर के लिए। जब तक एक का ऑर्डर सर्व नहीं होता, दूसरे को चांस नहीं मिलता है। लेकिन नो, स्पेशली या इफ यू गो टू बाय मूवी टिकट्स, एक फीमेल्स की लाइन है, एक मेल्स की लाइन है। भले ही फीमेल की लाइन में 2 ही हो और मेल की लाइन में 10 लोग हो, लेकिन उसको बैलेंस नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये आपकी कैपेसिटी एलोकेटेड है। आप यहाँ पे सिर्फ औरतें ही आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ ये डिपार्टमेंट के ही लोग आएँगे। भले ही इनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है, दूसरों के पास कम है। वो बाद में हम किस तरह से उसको कम-ज़्यादा कर सकते हैं, वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन द कॉन्सेप्ट ऑफ यान क्यू आपको समझ में आ रहा है? और इसी से पैदा होता है हमारा कैपेसिटी शेड्यूलर। कैपेसिटी शेड्यूलर का जन्म यहीं से होता है। व्हाई? बिकॉज़ हडूप 2 इज़ यूजिंग क्लाउडेरा में, हडूप 2 में डिफ़ॉल्ट आपका फेयर शेड्यूलर ही है, लेकिन इट इज़ कस्टमाइज़ेबल। आप उसको कैपेसिटी शेड्यूलर भी वो सपोर्ट करेगा, उसको कैपेसिटी शेड्यूलर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो आई टोल्ड यू अबाउट फीफो शेड्यूलर, आई आल्सो वांट टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ कैपेसिटी शेड्यूलर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बताऊँगी कि कैपेसिटी शेड्यूलर क्या होता है। तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट यान क्यूज़ बिकॉज़ इट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट हियर। तो कैपेसिटी शेड्यूलर में क्या होता है, कैपेसिटी शेड्यूलर में एक लाइन में आप याद रख सकते हो कि सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। सब कुछ एक को नहीं मिलेगा। फीफो में क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा उसको ही सब कुछ मिलते गया। जो फर्स्ट आ रहा है फीफो में, उसको सब कुछ मिल रहा है और बाद के लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। फीफो में क्या होता था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अभी हम बात करते हैं कैपेसिटी शेड्यूलर की। कैपेसिटी शेड्यूलर में क्या है कि भाई सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, तो 100% को हमने डिवाइड कर लिया, तू 25% ले ले, तू 25 ले ले, तू 20 ले ले, तू 30 ले ले। हमने डिवाइड कर दिया उसको क्यूज के फॉर्म में। और फिर क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द क्लस्टर बिकेम पॉसिबल, है ना? एंड वी वर ऑल्सो एबल टू सेटिस्फाई ऑल द डिपार्टमेंट्स इन द डोमेन। हर डिपार्टमेंट को हम कुछ ना कुछ दे पा रहे थे, तो सबका काम कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में चल रहा था। समझ में आ रहा है? तो शेयरिंग, अगर बहुत बड़ा हमारा क्लस्टर है, तो क्लस्टर का शेयरिंग एक इफेक्टिव वे में हो जाता है यूजिंग योर कैपेसिटी शेड्यूलर। आ रही है बात समझ में? अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो रिसोर्सेज है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाता है। बहुत अच्छे से हम हमारे क्लस्टर को यूटिलाइज कर पाते हैं। इलास्टिसिटी हो जाती है कि कहीं पे एकदम वर्क फ्लो बढ़ गया, तो वहां के क्यू का जो कोटा है वो आप बढ़ा दो, कहीं पे कम हो गया है तो उसको कम कर दो। तो देर इज दिस elasticity that you getting it, and it is also a sort of it is also guaranteeing the all the departments in your organization कि everyone is getting something or the other, nobody is remained unsatisfied here. थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है कैपेसिटी शेड्यूलर, बट वंस यू अंडरस्टैंड। सो टेल मी नाउ कि आपको समझ में आ रहा है कैपेसिटी शेड्यूलर? मैन्युअली मैन्युअली करते हैं हम। हम उसका जो कोटा है वो मैन्युअली दिया जाता है। ठीक है। ओहो। सो ऑल ऑफ यू ऑल, फीफो के अपोजिट तो नहीं बोल सकते, फीफो में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, अपोजिट लीफो हो जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑपोजिट। एज आई टोल्ड यू, रिमेंबर इट इन दिस वे कि यू आर ट्राइंग टू डू जस्टिस टू एवरीवन। एक केक लेके आए हो आप, तो केक लाने के बाद आपके घर में जितने बच्चे हैं, सबको थोड़ा थोड़ा आप दे रहे हो, हिस्सों में बांट रहे हो, जब प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या समथिंग, उस तरह से आपकी रिसोर्सेज का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। अब खाने में जैसे एक बच्चा छोटा है, तो उसका रिक्वायरमेंट एक रोटी का है, किसी का रिक्वायरमेंट 4 रोटी का है, तो आप यान क्यूज में उसको ज्यादा कोटा दोगे, इसको कम दोगे। लेकिन एट द सेम टाइम, या सबका साथ एंड सबका विकास,
तो यू आर ट्राइंग टू गिव एवरीथिंग टू एवरीवन. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑफ द क्लस्टर, एट द सेम टाइम यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ इलास्टिसिटी. Oh my God, you guys are so creative. Yes, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा. Okay, happy? Done, done, done. तो बहुत सारे examples हो गए. I guess the basic understanding of capacity scheduler is clear to you. अभी हम आते हैं fair scheduler पे, क्योंकि when you actually go for Hadoop 3, when I would jump to Hadoop 3, तब आपको fair scheduler से introduction होगा. अब fair scheduler के लिए guesses लो चलो. What do you think will be different in a fair scheduler? अभी आपको मैंने FIFO बताया, मैंने कैपेसिटी बताया. अब जैसे मैंने आपको बोला था कि हर चीज के ड्रॉबैक्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. तो अभी आप बताओ कि फेयर क्या अलग हो सकता है? एग्जाम्पल्स अच्छे लगते हैं आपको? अमेजिंग, गुड. बिकॉज दैट्स हाउ पीपल रिमेम्बर. अब मैं यहाँ पे आके बुक पढ़ते बैठूंगी तो आप लोग सो जाओगे. You will, yes, as the word suggests, guys, it is fair. There is equal sharing. मैं आके यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट ओपन करूंगी क्लाउडेरा का, एंड आई स्टार्ट फ्रॉम वर्ड नंबर 1 टू वर्ड नंबर 100. सारा मैंने पढ़ लिया A to Z, और फिर आप बोलोगे ओके वी हैड अ गुड स्लीप, टाटा बाय बाय. I have to make up stories. I have to make up these examples. I have to help you to relate it to your day-to-day life so that आपको याद रहे. So probably you may not remember me, but I really want you to remember the examples. ठीक है. तो आपका जो फेयर शेड्यूलर है वो क्या करता है कि आपके जो यान एप्लीकेशंस है, तो उनके जो रिसोर्सेज है वो लार्ज क्लस्टर्स में अच्छे से फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करता है. तो जैसे हमने देखा था कि किसी को 25 मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, यहाँ पे कैपेसिटी शेड्यूलर में है ना, किसी को जैसे हमने कोटा अलॉट किया था. तो अगर आप बात करते हो फेयर शेड्यूलिंग की, तो यू आर बीइंग वेरी फेयर. This is a father's property, and if everyone is getting a share, everyone is getting equal share as per the Indian law. Be it a daughter or a son, everyone gets an equal share, है ना. तो सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा. That is your fair scheduler basically. That is the concept. So it will basically assign resources in such a way that all applications on average get an equal amount of resources. All the applications on an average will be given equal amount of resources, and it will take these decisions on its own. It will take all these decisions on its own. Getting it? तो वो अपने आप ही डायनामिकली ये सारे क्या बोलते हैं हिस्से करके एलोकेशंस करेगा. तो इससे क्या होगा कि जो एक रीजनेबल टाइम पे आप आपका जॉब फिनिश कर पाओगे. और फिर अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिसोर्सेज बच गया है तो उसको यहाँ पे डालना चाहिए, तो दैट प्रोविजन इज देयर. मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन का ही थोड़ा सा झंझट होता है. बाकी इट इज अ वेरी रीजनेबल वे टू शेयर द क्लस्टर. इट ऑल्सो वर्क्स ऑन प्रायोरिटीज, लाइक यू नो कि किसको पहले अलोकेट किए किसको बाद में, तो थोड़ा सा प्रायोरिटी वाला कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है. ऑल यू नीड टू रिमेम्बर इज कि ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज पे काम करता है. So I guess we have covered all the major differences and architectures that came up with Hadoop 1 and Hadoop 2. And now I want to quickly show you the deployment and the daemons of Hadoop 1. एक फटाफट हम एक छोटा सा क्लस्टर डिप्लॉय करके देख लेते हैं. And yeah, then we will go to Hadoop 2 and 3 tomorrow. Like we'll discuss more of Hadoop 2 if possible. Deploy करके देख लेते हैं Hadoop 2 को कल. And then we will go to Hadoop 3 also. Okay? So are you clear so far? Like HDFS का architecture हमने discuss किया, checkpointing discuss किया. We also discussed about high availability. We discussed Spark on Yarn. We discussed Yarn architecture. है ना, उनके कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए. हमने पूरा लाइफ साइकिल देखा स्पार्क का और यान का. अभी हमने शेड्यूलर्स देख लिए, फेयर शेड्यूलर देख लिया, कैपेसिटी शेड्यूलर देख लिया, और यान क्यूज का कॉन्सेप्ट, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने टच बेस किया. वेरी गुड. तो अभी फटक से क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग क्या करते हैं, एक डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं ओपन सोर्स पे Hadoop 1 का. एंड we will see all the demons that come along with it, and I think we should be able to we should be good to go for today. I think I need to share the screen. Just give me a minute here. ठीक है, क्या दिख रहा है आपको? AWS कंसोल दिख रहा है मेरा?
एक इंस्टेंस है जिसको मैंने स्टॉप कर रखा है. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. डिड आई स्टार्ट? अरे आई स्टार्टेड इट. ओके, आने दो इसको. लेट इट कम. डू यू वांट अ ब्रेक और समथिंग, or should I just finish off the session? कैपेसिटी शेड्यूलर में रिसोर्स पूल होता है. वो पूल में सारे रिसोर्सेज डाल दिए जाते हैं, और इंटरनली भी वो पूल के अंदर जो आपके रिसोर्सेज होते हैं उस पे बेसिकली फेयर शेड्यूलर ही काम करता है. Somebody asked me about the resource pool. Okay, I guess the instance is up and running. ये हम इसको पटी से कनेक्ट कर लेते हैं. क्या हो गया? Why it's not getting loaded? Hold on. सेम ही तो सेशन है, आईपी चेंज हो गया होगा इसका. There you go. I just want to hide this thing that keeps coming. Hold on. Hide, 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 hide. Hide meeting. हाँ ठीक है, चलो. अभी ये can you see the screen? Log in as Ubuntu and I'll change the settings for you. Appearance आपके लिए सही हो जाए. तो just as a recap, हम लोग एक Hadoop 1 ओपन सोर्स पे सिंगल नोड क्लस्टर के फॉर्म में डिप्लॉय करके देख लेते हैं. ठीक है, आपकी तरह थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम रीब्रश कर लेते हैं. ठीक है. Ubuntu 18.04 लिया है मैंने, 18.04. ओके, ठीक 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 ठीक. देखो, this is the script that we have. सबसे पहले हम क्या करेंगे? sudo apt update करेंगे. So you can see it's getting updated. Why do we update? रेपो अपडेट करते हैं हम. कुछ चेंजेस जो रहेंगे, जो रेपो अपडेटेड नहीं होगा, तो हम उसको अपडेट कर देते हैं. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? कीजेन, SSH कीजेन. कीजेन से क्या होता है? की जनरेट हो गई हमारी. की जनरेट होती है. yes, keygen is used to generate a key. Now what are we doing here? Who's going to tell me? Especially people who are telling me by heart हो गया है. I guess it was Rohit. Come on, tell me, what are we doing here? Okay, we are appending the key, but where are we appending it? Yes, but where are we appending it? What are we doing exactly here? We are pushing it into a folder of authorized keys. We are pushing it into a folder of authorized keys. Now, what am I doing here? I need, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि when it comes to your Hadoop 1, आपका वर्जन 7 भी चलेगा जावा का. Hadoop 2 and above, I guess we were using Java 8. लेकिन यहाँ पे अब ये देखो हमने क्या किया है. अभी समझो आपकी ये लिंक चली गई, तो आप क्या करोगे? आर्काइव्स पे जाओगे और इसके अपाचे पे, और वहां से ये जो रिलीजेस है वहां से आपका लिंक कॉपी करके लेके आओगे. डुप्लीकेट लिख के सिर्फ लिंक कॉपी कर दो एंड यू आर गुड टू गो. आप तो अपनी खुद की स्क्रिप्ट बना सकते हो यहाँ पे. इसको एक टारबॉल हमने कॉपी करके लेके आ गए अपाचे के वेबसाइट से. अब हम क्या कर रहे हैं? उसको अनटार कर रहे हैं. इट्स वर्किंग सो फास्ट, वेरी नाइस. अब जैसे ही हमने अनटार किया, हमने उसको मूव किया एक लोकल हडूप के फोल्डर में. क्यों किया हमने ये? हु कैन टेल मी व्हाई आर वी मूविंग इट?
आपका सिंगल नोड का सेशन मैंने लिया था क्या? डिड आई टेक योर सिंगल नोड सेशन? हाँ, देन आई एम श्योर यू नो कि ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, तो उसको हमने घर बना के दिया है, जैसे हम हमारे रिलेटिव्स को देते हैं। ओके, ओके, देन तो टेंशन ही नहीं है। इफ आई हैड टेकन योर सेशन तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बिकॉज़ आई गेस एक क्विक ब्रश अप आपके लिए काम करेगा। तो अभी हम हडूप 1 का डिप्लॉयमेंट देख रहे हैं सिंगल नोड पे। अभी यहाँ पे देखो क्या है, ये जो आपके एक्सपोर्ट करते हैं मतलब क्या? लिनक्स से बाहर भेजते हैं हम। तो अभी हम लिनक्स का एनवायरनमेंट सेट कर रहे हैं, बेसिकली लिनक्स को फेमिलियर करा रहे हैं हडूप से, क्योंकि हडूप जावा के ऊपर होता है। तो जावा के ऊपर हडूप होता है, तो इट नीड्स टू कम्युनिकेट विथ योर लिनक्स। उसके बीच में आ जाता है जावा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। तो उसको बताना पड़ेगा भाई हाय हेलो कर लो एक दूसरे को, आपको एक साथ काम करना है ना? तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हडूप अंडरस्कोर प्रीफिक्स एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमने क्या दिया कि भाई देख, तेरे अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है जिसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं एक पाथ कि हडूप कहाँ रखा गया है, यूजर लोकल हडूप में रखा गया है। और हमने उसको डॉलर पाथ दे दिया, मतलब जब भी आप हडूप प्रीफिक्स को कॉल करोगे वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपका हडूप है। सेम इज विद जावा अंडरस्कोर होम, इट इज अ वेरिएबल विच इज स्टोरिंग द पाथ ऑफ जावा। ये ऑलरेडी था यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट। आई हैड यूज्ड दिस इंस्टेंस आई गेस। यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपका यहाँ पे, हाँ ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जावा होम बोल के जो वेरिएबल है उसमें पाथ दे रखी है, एंड हडूप अंडरस्कोर ओपीटीएस। अब बताओ हडूप अंडरस्कोर ओपीटीएस क्यों काम करता है? Why do we need it? What is the purpose? If you remember, for heap size guys, heap size के लिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन core site dot xml क्यों important है? What is the purpose of core site dot xml? No, I don't like such answers. NN क्या NN? Give me answers the way I deserve them. आपको लगता है आपके आंसर्स अगर मैं ऐसे वन वर्ड में दूंगी तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे? NN क्या? It will basically tell where NN is located. NN का लोकेशन बता रहा है वो, isn't it? It is basically giving you the location कि देखो भाई यहाँ पे ये पोर्ट नंबर पे 9000 वाले जब आप नॉक करोगे तो आपको NN मिलेगा। और वो कहाँ रखा गया, एक टेम्पररी डायरेक्टरी बना के उसको रखा गया है, तो क्लस्टर पे जब नेम नोड को ढूंढने जाएगा तो उसको मिलेगा हडूप को नेम नोड कहाँ रखा गया है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर hdfs site.xml। तो आप मुझे बताएंगे कि hdfs site.xml क्यों यूज होता है? बेसिकली अगेन कि यहाँ पे हम अपना रेप्लिकेशन फैक्टर सेट करते हैं, है ना? ये कुछ कॉन्फ़िगरेशंस है जो हम करते हैं, दीज आर कस्टमाइजेबल। अभी मैपरेड site.xml, व्हाई डू वी यूज मैपरेड site.xml? यहाँ पे हम उसको बता रहे हैं कि क्लस्टर में हमारा जॉब ट्रैकर कहाँ रखा गया है। जॉब ट्रैकिंग का काम देखो, अभी जो मैप रिड्यूस है वो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट भी कर रहा था और वो हमारा प्रोसेसिंग भी कर रहा था, है ना? तो उसको बताया गया है कि भाई आपका जॉब ट्रैकर कहाँ रखा गया है। यस, लॉजिकल डी। अभी क्या कर रहे हैं हम, व्हाट डू वी डू नेक्स्ट? वी आर डूइंग mkdir, वी आर क्रिएटिंग अ टेम्प डायरेक्टरी। अच्छा, it already exists and we're going to execute bash। Coming back, we are going to format the name node। Okay, who's going to tell me कि what is the next step? Guess। Okay, control L कर लेते हैं। Yes, we are going to start all the daemons।
logical and physical. What are the physical demons? Who can tell me? NN and SNN. What are the logical demons? Who are going to tell me? Yes. Data node? You think that is a logical demon? Isn't it doing the work of writing? Actual में काम कर रहा है तुम्हारा data node. It is a physical demon. JT is your logical demon. TT is your logical demon. Abhi, let's do JPS and check. There you go. So this was the deployment of your Hadoop 1. Since it was part of my agenda, I deployed it for you and it did not take more than 5-10 minutes to do it. Okay. So with that, I guess आज का जो मेरा sequence था चीजों का, that has ended. I wouldn't take much of your time on the weekend. I wanted to walk you through a lot of architectures and the flow. I hope the session was clear enough. You all understood things. If you really knew things, they became clearer. And tomorrow probably we would go and see Hadoop 3. क्योंकि अभी Hadoop 3 ही है सब जगह प्रोडक्शन में, तो हम देखते हैं CDP के बारे में, है ना? CDP के 6 वर्जन के ऊपर हमारा Hadoop 3 पिक्चर में आ जाता है. So let's see how that works and we will try to deploy that. Hadoop 2 का जो डिप्लॉयमेंट है, आई गेस आपका क्लाउडेरा मैनेजर का एक डेडिकेटेड सेशन होता है उसके ऊपर. हुआ है आप लोगों का? एक डेडिकेटेड सेशन हुआ है. तो बेसिकली उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम क्लाउडेरा और ये क्या बोलते हैं, एक मिनट होल्ड ऑन, उसमें हम Hadoop 2 का डिप्लॉयमेंट देखते हैं, राइट? तो अभी जब मैं आपको ये बोलूंगी कि Hadoop 3 डिप्लॉय करना है और Hadoop 2 का आपने वो सेशन में सीख रखा है, तो आर यू ओके? और आपको डिप्लॉयमेंट Hadoop 2 का भी देखना है? कि my as per my plan, I really want to walk you through Hadoop 3 deployment. So the session won't be very good. Hadoop 3 का करते हैं फिर हम कल. The session won't become too lengthy also. And Hadoop 2 का deployment you are already seeing in that dedicated session of CM, जिसमें हम Hadoop 2 ही deploy करते हैं. And Hadoop 3 हम साथ करते हैं कल hopefully. Continue करो. Okay guys, have a wonderful weekend ahead and see you. Bye.